इस मीडिया ने इस कोविड-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद के तारीखी बीबी कलम के लिए बीजेपी के लीडर फिरासत अली वाकरी के जरिए सेहरा मुबारक रवाना किया और शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन को अपना भरपूर खिराज पेश किया। किशन रेड्डी ने कहा कि मारे के करबला में अपनी और अपने खानदानों की जानों की कुर्बानी देते हुए इमाम हुसैन ने इस्लाम को जिंदा और सरबुलंद किया। इमाम हुसैन की कुर्बानी रहती दुनिया तक याद रहेगी। उन्होंने मुहर्रम के मजालिस और आशूरे के मौके पर कोविड-19 के खवायद और ज़वाबित की पाबंदी करने की अपील भी की। उनसे अनुरोध करता हूँ शांतिपूर्वक कोरोना देखते हुए ये मुहर्रम के अंदर अपना जो प्लेट जो होता है वो काम करना चाहिए। शांतिपूर्वक कार्यक्रम निर्वहन होना चाहिए। सरकार से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके उनका बात के द्वारा जितना अच्छा कार्यक्रम करना चाहिए, जितना मेमोरी का डेडिकेशन हुआ है, डेडिकेशन का काम करना चाहिए, वो काम करिए। भारत सरकार भी अलग अलग जगह उनके विषय पर इंस्ट्रक्शंस पूरे सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं। साबिक वजीर बल्खी मोहम्मद शब्बीर अली और मलकाजगिरी के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज हरीलाल बाग आजमपुरे में असिस्टेंट इंजीनियर उस्मा फातिमा के वालिद और रिश्तेदारों से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। वाज़ेह है कि उस्मा फातिमा जुमेरात को श्री सैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में हलाक हो गई। इन दोनों कायदीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आतिशबाजी के जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। उन्होंने महलूक इंजीनियरों और दीगर अफराद को 25 लाख रुपए के गिरेशा को नाकाफी करार दिया। इस मौके पर सदर रियासती यूथ कांग्रेस अनिल कुमार यादव, कांग्रेस लीडर उस्मान खान, मतीन शरीफ और अशफाक खान भी उनके हमरा थे। అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటాం। అతనికి కుమారుడు కుమార్తె ఉన్నది। కుమారుడు 9వ తరగతి, కుమార్తె 7వ తరగతి చదువుతున్నది। వాళ్ళ చదువులకు సంబంధించిన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందించడానికి, ఆ కుటుంబానికి అండగా నిలబడడానికి, వాళ్ళకు ఒక సంపూర్ణమైన నమ్మకం భరోసా కల్పించడానికి మేము హామీ ఇచ్చినాం। కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం ఈ సంఘటనలో వాళ్ళ కుటుంబానికి అండగా ఉంటుంది। ఈ వివరాలన్నీ కూడా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ గారికి కూడా మేము రిపోర్ట్ పంపించినాం। వాళ్ళు కూడా రేపు పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాం। గతంలో విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా పనిచేసిన మొహమ్మద్ అలీ షబ్బీర్ గారికి సంపూర్ణమైన అనుభవం ఉంది। దీనికి సంబంధించి వారు కూడా కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తారు। ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పరిపాలన చేయాలా, మంత్రుల యొక్క బాధ్యత ఏందనేది కూడా తెలిసిన వాడిగా వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాను। రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరగకంటే ముందు 6 గంటల ముందే ఆయన కృష్ణా బోట్కు ఫిర్యాదు చేసినారు। అక్కడ టన్నల్స్లో జాగ్రత్త చర్యలు లేవు। ఎప్పుడైనా అలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరగగానే అక్కడ ఫైర్ జరిగితే ఫైర్ ప్రూఫ్ విషయంలో కానీ, లేకుంటే బయట పోయేందుకు బయటికి వెళ్ళేందుకు కానీ ఎలాంటి అక్కడ చర్యలు తీసుకోలేదు। ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలండే, కానీ ఏం తీసుకోకుండా పోవడం, దానివల్ల ఇలా 9 మంది మా ఎలక్ట్రిసిటీ ఉద్యోగులు ప్రాణాలతో పోయి, మరి దానివల్ల ముఖ్యమంత్రి గారికి కానీ, ఆయన కుమారుడు కానీ, ఏదైనా కానీ ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ జరిగేటప్పుడు పోవడం. ఆయన మాసాయిపేటలో ట్రైన్ ఇన్సిడెంట్ అయింది, 20 పిల్లలు చిన్న వాళ్ళు చనిపోయారు। ఆయన గజ్వేల్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తుంది, గజ్వేల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకి వస్తుంది, ఆయన పోడు, దవాఖానకు పోడు। నేను అనుకుంటా నిజాం సర్కార్ బతికి ఉంటే కూడా ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు కొన్ని చోట పోయిండొచ్చు, కానీ నేను అది కూడా పోడు। ప్రజలు గమనించాలా। రేవంత్ రెడ్డి గారు 6 గంటల ముందే లెటర్ కూడా ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు డిమాండ్లో చెప్పడం కూడా జరిగింది। మేము కూడా ఇప్పుడు పోనిస్తలేరు। ఎందుకు, ఏ కారణం వల్ల ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, నెగ్లిజెన్సీ ఎందుకు జరిగింది, ఎందుకు ఇలాంటి రాకముందు జాగ్రత్తలు ఎందుకు తీసుకోలేదు అనే విషయంలో మేము సిబిసిఐడి డిమాండ్ చేసినాం సిబిఐకు। కాకుండా ఎవరు ఏజెన్సీ ఇచ్చినా మా తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళకు సమాచారం ఇస్తాం చెప్తూ, కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు నుంచి ₹1 కోటి ఇవ్వాలా, ఒక ప్లాట్ ఇవ్వాలా, వాళ్ళకు అదే స్థాయిలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు జాబ్ ఇవ్వాలని
డిమాండ్ చేస్తున్నాం. रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने माहिरीन तालीम और तालीमी इदारों से कहा कि वो उन बच्चों तक ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत फराहम करे जो गरीब हैं और लैपटॉप व इंटरनेट कनेक्शन हासिल करने के मुत्तमिल नहीं है। परकाल वरंगल के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तरफ से मुनक्किदा एक 3 रोजा बैनुल-अक़वामी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले तलबा इंटरनेट की सहूलत नहीं रखते, हत्ता कि उनके पास स्मार्टफोन तक नहीं है। चुनांचे उन्हें ऐसी सहूलतें फराहम करना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन तालीम को यकसा तौर पर फराहम करने पर जोर दिया। कॉलेज एजुकेशन कमिश्नर नवीन मित्तल, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर गिरिजा शंकर, IMM के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर जी श्रीनिवास और दूसरों ने भी इस कॉन्फ्रेंस का खिताब किया। 200 से ज्यादा प्रोफेसर और माहिरीन तालीम ने अपने मकालेजात पेश किए। रियासती वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज मित्तापल्ली ग्राम पंचायत के इजलास में शिरकत की और गांव की तरक्की के लिए 6 तजावीज को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि गांव की हमारे पास बड़ी अहमियत है और ये नए हिंदुस्तान का हिस्सा है। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खां खालिद ने मरकजी वजारत खारिजा से रियाद में बरसर खिदमत एक हैदराबादी अब्दुल मजीद का पता चलाने की दरखास्त की है। वज़ीर खारिजा S जयशंकर के नाम रवाना करदा अपने मकतूब में उन्होंने बताया कि मेलारुद्दपल्ली के रहने वाले अब्दुल मजीद 3 साल कबल सेल्समैन की हैसियत से काम करने सऊदी अरब गए थे। 16 जुलाई को उनके खानदान से आखिरी मरतबा उनका राब्ता हुआ था। उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चला, न ही कोई राब्ता कायम किया जा सका। अब्दुल मजीद के वालिद मोहम्मद अब्दुल वहीद ने उनसे मुलाकात करके सारी दास्तान सुनाई और बताया कि उनके फर्जंद को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिए जाने का इल्म हुआ है। मस्जिद बचाओ तहरीक के लीडर ने रियाद में वाक़े हिंदुस्तानी सफारत खाने से कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर जोर दिया। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वहीद है और मैं हैदराबाद में रहने वाला हूँ और मेरा एड्रेस मेलारुद्दपल्ली वरमगड्डा मुगल कॉलोनी में मेरा मकान है और मेरा लड़का मोहम्मद अब्दुल मजीद काम के लिए रियाज गया हुआ था और 3 साल से वहाँ काम कर रहा है और वहाँ पे 2 साल ठीक से काम किया। फिर वो 2 साल के बाद 3 महीने की छुट्टी मिली उसको। 3 महीने की छुट्टी में वो इंडिया आया और यहाँ रहने के बाद अगस्त के महीने में यहाँ से फिर गया वो छुट्टी होने के बाद। और 1 महीना पहले 16 जुलाई के शाम में मेरे से बात हुई, घर में बच्चों सबसे बात हुई। फिर 16 तारीख के बाद से आज तक बात नहीं हुई। अब ये इतना हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा और मैं इंडियन गवर्नमेंट से और रियाज की गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरा लड़के से मुझे कुछ भी रब्त नहीं हो रहा और इसके लिए मेरी मदद करना ज़रूरी है। मुझे आप लोगों की मदद होना चाहिए और मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और इस ज़माने में मेरे मिसेस भी हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। मेरे साथ जो है हमारे मोहम्मद अब्दुल वहीद साहब हैं। ये जो है वरमगड्डा मेलारुद्दपल्ली एरिया में रहने वाले हैं। इनका लड़का मोहम्मद अब्दुल मजीद जो है रियाद में कंपनी के लिए काम कर रहा था पिछले 3 साल से। सलीम अब्दुल्ला अलसराई ट्रेडिंग कंपनी थी ये, तो इनका लड़का जो है एज ए सेल्समैन काम कर रहा था। माल डालने के लिए पूरे सऊदी अरब में इनका लड़का घूमता था बाई रोड। तो माल डालने के सिलसिले में जो है और रोज़ाना आपसे टेलीफोन पे बराबर फैमिली से टच होता था। 2 साल काम करने के बाद में ये लड़का हैदराबाद आया, रिसेंटली शादी हुई लड़के की। आने के बाद में मार्च अप्रैल यहाँ पर रहने के बाद में 2019 ये बच्चा जो है फिर से अपनी जॉब पर गया। तो लास्ट जब माल डालने के लिए निकला था तो इनसे 16 जुलाई 2019 के दिन आखिरी मर्तबा इनसे बात हुई बच्चे की। इनकी और इनके बच्चे की 16 जुलाई 2020 के दिन आखिरी मर्तबा बातचीत हुई। अब आज तकरीबन 1 महीना हो गया, जुलाई 16 से लेके अगस्त 16 तक। इनका बच्चा कहाँ है नहीं मालूम हो रहा सऊदी में। इनके जो कंपनी में काम करते हैं वो मैनेजर भी जो है यहीं के हैं, उन्होंने कहीं हैदराबाद के। उनसे भी बात किए तो उन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई हमको भी नहीं मालूम। कफ़ील को फ़ोन करें तो कफ़ील बोल रहा मैं भी पुलिस में कंप्लेंट करूँ ढूंढ रहा हूँ बोल के। लेकिन इनके लड़के के साथ जो ड्राइवर था जो गाड़ी चला रहा था
वो भी है, राजस्थान का है वो ड्राइवर, इंडियन ही है। तो वो ड्राइवर ये बोल रहा है कि हम लोग माल डालने के लिए जा रहे थे, गसीम में पुलिस वाले रुके, मेरे को भी पकड़े और वो लड़के को भी पकड़े, इनके मुझे छोड़ दिए और वो लड़के को जो है पुलिस वाले पकड़ कर लेके गए। तो ये बात वाजह नहीं हो रही कि क्यों पकड़ी पुलिस, किस लिए पकड़ी। 1 महीना हो गया, ये बेचारे बहुत परेशान है अपने लड़के के लिए, उसकी अहलिया भी परेशान है, उसकी माँ परेशान है। तो मेरे पास आए हैं ये लोग। मैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से मेरी गुजारिश है कि इनके लड़के के बारे में जल्द से जल्द मालूम करें सऊदी गवर्नमेंट से कि आया क्यों पकड़े हैं इनके लड़के को। और इंडियन एम्बेसी रियाद के जो एम्बेसडर, इंडियन एम्बेसडर है डॉक्टर औसाफ सईद साहब से भी मेरी गुजारिश है कि इनके लड़के के बारे में मालूमात जल्दी हासिल करके, मैं एप्लीकेशन भेजा हूँ, उसके बारे में मालूमात करके हासिल करके बोलिए। और अगर कोई लोग वहाँ पर अलगसीम में लोग हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मैं फेसबुक पे इनका चिचा का नंबर और रियाद के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इनके लड़के के बारे में रियाद के लोग या अलगसीम के लोगों को कुछ मालूम हुआ तो चिचा को बोलिए, और वो बच्चे को कुछ लीगल हेल्प भी होना है तो प्रोवाइड करिए। शुक्रिया। रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने बालापुर के मशहूर गणेश मंडप में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कोरोना के चलते समाजी फासले की बरकरारी और मास्क के लुज़ूम जैसी शराइत की पाबंदी करें। वाज़ेह है कि कोविड-19 के चलते और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर शहर के इस कदीम और तारीखी गणेश मंडप में 6 फीट की मूर्ति बिठाई गई है। वज़ीर तालीम के हमरा मेयर CP नरसिम्हा रेड्डी और सदर गणेश उत्सव समिति निरंजन रेड्डी भी थे। सबीता इंदिरा रेड्डी को इस मौके पर लड्डू का प्रसाद भी दिया गया। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज ESI हॉस्पिटल एरागड्डे में कोविड-19 के आइसोलेशन वार्ड का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि मरकजी हुकूमत के इक़दाम के सबब मुल्क में कोविड-19 के अमवात की शरह सबसे कम है। उन्होंने सेहतियाब होने वालों की शरह पर भी इत्मीनान का इज़हार करते हुए डॉक्टरों, नर्सों और तिब्बी अमले की खिदमत की ज़बरदस्त सिताइश की। सदर सीरतुल नबी अकेडमी मौलाना अली खादरी ने रियासती सेक्रेटरीट में 2 मसाजिद की शहादत पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखरा को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत के इक़दाम से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कार्रवाई नाकाबिल माफ़ी है और मुतबादिल जगह मसाजिद की तामीर को मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। मौलाना अली खादरी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उसी मुकाम पर दोबारा मस्जिद की तामीर का काम शुरू करे। मैं आपकी तवज्जो उधर भी दिलाना चाहता हूं जो हमारे शहर हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। सेक्रेटरीट को डेमोलिश किया गया, इंतहाम किया गया। TRS गवर्नमेंट ने यह प्लान किया कि नया सेक्रेटरीट बनाएं। आप एक नहीं 4-4 सेक्रेटरीट बना ले, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हमारी रियासत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव साहब ने एक बहुत बड़ी गलती की है, जिनको फौरी तौर पर अपनी गलती को उनको सुधार लेना चाहिए। सेक्रेटरीट की 2 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। सेक्रेटरीट कैंपस को जब आप डेमोलिश कर रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर मस्जिद हाशमी और मस्जिद मुतमदी, जो 2 मस्जिदें हैं, जो आबाद मस्जिदें थी, उसको महफूज करते हुए आप सेक्रेटरीट के कैंपस की दूसरे इमारतों को डेमोलिश करना चाहिए था। लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट CM KCR ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सेक्रेटरीट कैंपस की जितनी बिल्डिंग्स को डेमोलिश किया गया, उसके साथ साथ सेक्रेटरीट में 2 आबाद मस्जिदों को, मस्जिद हाशमी और मस्जिद मोतमदी को है और नाकाबिले माफी गलती है। दारी नहीं है, हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का हम कलमा पढ़ते हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह के घरों की हिफाजत करें, अल्लाह के घरों का तहफ्फुज करें और ऐसे झूठे वादे करने वालों को सही माना में सबक सिखलाए और मस्जिदों की फिर से एक बार दोबारा तामीर करना। हुकूमत से पुरजोर अपील करूंगा कि आप लोग फौरी तौर पर 3 मसाजिद की शुरू करें और वहां पर फौरी तौर पर तामीर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मल्काजगिरी के कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने आज चंपापेट में जेंको के डिप्टी इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ के घर पहुंचकर उनके खानदान वालों से ताज़ियत का इज़हार किया। श्रीनिवास गौड़ श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट में लगी आग के 9 महलूकीन में शामिल हैं। उन्होंने वजीर बरखी जगदीश रेड्डी और जेंको के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभाकर राव के खिलाफ गफलत और लापरवाही के मुकदमा दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि हुकूमत मामूली एक्सग्रेशिया देकर बरखी बोर्ड के मुलाजिमीन की कुर्बानी को घटाने की कोशिश कर रही है। इन तमाम को भी लद्दाख में चीनी हमले में हलाक लेफ्टिनेंट कर्नल संतोष की बेवा की तरह एक्सग्रेशिया और मराद देना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने आतिशबाजी के वाक़े की सीबीआई तहकीकात का भी मुतालबा किया और बताया कि वो पार्लियामेंट के आइंदा इजलास में इस वाक़े को उठाएंगे। उनके हमरा साबिक वजीर शब्बीर अली और दूसरे पार्टी कायदीन भी थे। हसीना वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से कोविड-19 के चलते लॉकडाउन और माशी तौर पर परेशान गरीब खवातीन में ग़िज़ाई अजनास और साड़ियाँ तकसीम की गई। इस मौके पर समाजी कायदीन शेख अब्दुल कादर, श्रीनिवास रेड्डी और बी नरेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। जमीयतुल खुरैश ने रमनसपुरा मसलक में बड़े जानवर की कटाई के लिए जेएचएमसी की तरफ से मुकर्ररा फीस को 100 रुपए से बढ़ाकर 150 कर देने के फैसले को गैर मुनसिफाना करार दिया। अब्दुल कादर कुरैशी ने मीडिया को बताया कि पहले यहाँ सब काम मशीन के जरिए अंजाम दिया जाता था, लेकिन काम से अदम वाकिफ की वजह से इस मशीन पर काम सही नहीं हो रहा था। उसके बावजूद जमीयतुल खुरैश ने 150 रुपए की फीस को कबूल कर लिया। जमीयतुल खुरैश ने रमनसपुरे के कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ पुलिस कामाडीपुरे में शिकायत दर्ज करवाई और उन पर मनमानी फीस लेने का इल्जाम आयद किया। जवाबन कॉन्ट्रैक्टर ने भी पुलिस से रुजू होकर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की। वजह क्या है कि इस वजह से आप लोग यहाँ पे आए, क्या आप लोगों का क्या मुतालबा? पिछली बार जो टेंडर हुआ था उसमें 100 रुपये स्लॉटरिंग चार्जेस तय हुए थे बल्दिया की जानिब से। उसमें कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ये होती थी कि जानवर के जो है 4 पीस करके कारकस जो है जानवर वाले के हवाले करना 100 रुपये। वो 100 रुपये में जो है ये काम नहीं कर सक रहे थे और मशीन जो है फेल हो गए। मशीन ऑपरेटर जो है परफेक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से बैठ के ये तय हुआ कि भाई मैनुअल आप काम करा लो और हमारे को फीस जो है 60 रुपये दे दो। वो 60 रुपये एक ज़माने से हम लोग दे लेते आ रहे हैं। इस बार जो टेंडर हुआ है इस बार जो टेंडर हुआ है उसमें फीस को इन्हांस करके 100 की बजाय 150 रुपये रखा गया है। वो 150 रुपये भी हम देने के लिए तैयार हैं। पूरी बिरादरी अब इस वक्त तैयार है वो 150 रुपये देने के लिए, लेकिन शर्त तो वही है ना, गाइडलाइंस तो वही है ना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो 100 रुपये में थे, आज 150 रुपये में भी वही है। कटा के 4 पीस करके हमारे हवाले करना, वो नहीं करते बोल रहे मौजूदा गुत्तेदार। इसीलिए हम उनसे बार बार अपील करें, बार बार रिक्वेस्ट करें कि भाई इसको बैठ के जो है अपने मसले को आपस के हल कर लेंगे। तो उन्होंने बोले नहीं 1 रुपया भी मैं कम नहीं लेता, आपको जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ। तो अब हम जो है यहाँ बैठ के मीटिंग करें। हमारे लोग ये बोले कि उन्होंने कल पुलिस को भेजते बोल रहे हैं, नाके पे भेज के पुलिस की मौजूदगी में पैसे कलेक्शन करते बोल रहे हैं। तो हम जाके पुलिस में एप्लीकेशन देंगे कि भाई आप हमारे को प्रोटेक्शन दो, कि हम पैसे देने को तैयार है, नहीं देते नहीं बोल रहे हैं। पैसे वही 150 रुपये देंगे, 1 रुपया भी कम नहीं देंगे, लेकिन कंडीशन के हिसाब से जो काम करके स्लॉटरिंग करके 4 पीस करके हमारे को देना है वो दीजिए। और अगर आप मशीन पे नहीं कर रहे हैं या बूचर्स के जरिए से नहीं करवा रहे हैं, हमारे को वो जिम्मेदारी देते हैं कराने की, तो वो हम कर लेंगे। फीस में कंसेशन होना चाहिए। आप टेंडर जब कॉल हुआ था, टेंडर में क्या ये ब्रीफ उसमें लिखे हुआ था? हाँ है, मशीन उसकी एक कॉपी हम पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिए हैं मशीन में। जी। तो आप लोग फिर उनके ऊपर एक धोखाधड़ी के या फिर जीएचएमसी के ऊपर आप लोग एक लीगल एक्शन ले सकते? बिल्कुल ले सकते, लेंगे। आप जो है सो टेंडर में ये बता रहे हैं कि आप मशीन से ऑपरेट करेंगे, जो न्यूज़ तो जारी हुई है इंजीनियरिंग सेक्शन से, और हम इंजीनियरिंग सेक्शन पे भी सूट फाइल करेंगे। ये करना जरूरी है, वो करे बगैर हमारा मकसद हल नहीं होता। लेकिन पहले ही आपस का मामला है, हम यहाँ बैठ के चूंकि उन्होंने पुलिस को भेजता हूँ बोले, तो हम भी पुलिस स्टेशन में एक अर्जी डाल दिए हैं ये बोल के कि आप प्रोटेक्शन दीजिए, हम पैसे देने को तैयार है, हमारे को जो है पूरा काम करा के दे। यहाँ पे कितने डेली यहाँ पे कितने लोग का यहाँ पे जानवर कटता है अप्रोक्सीमेटली? 240 का तो परमिशन है, बस 240 ही कटना है। ठीक है। हालात क्या होते हैं कल के बाद देखिए। ऐसा बंदा हर तरीके से जो है सो वो है पूरा बात करेंगे। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज अपने एक बयान में बतलाया कि भारत में कोरोना वायरस की धूम के चलते हालिया दिनों में पीएम मोदी की ज़र खरीद गुलाम मीडिया ने तबलीगी जमातियों को
इस मरज के फैलाने वालों के तौर पर इसलिए बढ़ावा दिया कि बीजेपी हुकूमत के पिछले 6 साल दौर की ज़बरदस्त नाकामियों को छुपाया जा सके। वैसे अब माहौल में ये बात जोरों पर गश्त कर रही है कि अगर वजीर आजम के जूतों पर जहर का एक कतरा कहीं से गिर जाए तो पता नहीं कितने लोगों की मौत वाक़ हो जाए। और ज़रख़रीद गुलाम मीडिया के गलत प्रोपेगेंडे से सारे मुल्क के मुसलमानों को ज़बरदस्त बदनाम करते हुए इनके खिलाफ में हिंदुओं को ज़बरदस्त अंदाज में भड़काया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में फसादात उमड़ पड़े। इस मीडिया ने इस कोविड-19 को एक मजहब दे दिया। कोई मुल्क इसको मजहब से नहीं जोड़ रहा है। सब कह रहे हैं कि भाई ये मिलकर इसका मुकाबला करना है, मगर ये मीडिया के लोग, इनको शर्म नहीं आती। इतने बेशर्म है ये लोग कि ऐसे वक्त में बजाय लोगों को जोड़ने के हस्बे रिवायत, हस्बे आदत और अपनी मुनाफिकत और अपनी खुशामद और बल्कि जर्नलिज्म के नाम पर धब्बा हैं ये लोग, जो एक मजहब को इससे जोड़ रहे हैं। अब आप ये बताइए, पार्लियामेंट को क्यों नहीं बंद किया गया भाई? 13 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहती है कि ये कोविड जो है हेल्थ का नहीं है। पार्लियामेंट चलता है, आप मध्य प्रदेश में आप बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है, हजारों की तादाद में लोग खुशियां मनाते हैं उनके दफ्तर में आके, उसमें आपकी याद नहीं आया। आज से चंद दिन पहले दिल्ली दारुल हुकूमत भारत की हजारों लोग जो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से मजदूर पेशा हैं, भूख और फाका कशी के आलम में निकल जाते हैं। आपको जब कुछ नहीं बोलते आप। अच्छा, भारत बंद 5-6 बजे खत्म हुआ, रोड पर निकल कर लोग थालियां बजा रहे हैं, बैंड बजा रहे हैं, जब आपको नजर नहीं आया। ठीक है, दिल्ली में हुआ, वहां से लोग निकल के आए, मुझसे इनकार नहीं कर रहे, मगर इसको पूरी तबलीगी जमात को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे, इस्लाम को जिम्मेदार खड़ा कर देंगे। तो फिर क्या, इटली में फुटबॉल मैच हुआ, फुटबॉल मैच में फैल गया पूरा, अब बोलिए किसको जिम्मेदार खड़ा करेंगे? ये पेंडेमिक है भाई, हम गम है हमारे को। ये लोग जा रहे हैं भाई, किस चीफ मिनिस्टर टेलीफोन करके मेरे को बोले, असद भाई मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरे को मालूम नहीं था कि 6 अमवात हुई हैं। बोले, मैं क्या हुआ साहब बोलिए? तो बोले, असद भाई बहुत बुरी न्यूज़ है, अपने तेलंगाना के 6 लोगों का इंतकाल हो गया। अरे भाई, एक रियासत का चीफ मिनिस्टर फिक्रमंद है और पूरे तबलीगी जमात के जिम्मेदारान से मैं राब्ते में हूँ, हुकूमत राब्ते में, वो पूरा अपना मुकम्मल ताउन पेश कर रहे हैं। तो मैं आवाम से अपील कर रहा हूँ कि इसको जो बाज मीडिया के लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो काबिल मजम्मत है, कंडेमनेबल है। यकीनन ये हुआ है, इसको रोकना है। कैसे रोकना है, इंशाल्लाह हम पूरी मिलकर कोशिश करेंगे। भारत की जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ में भड़काए गए अवामी जज्बात के खिलाफ में फैसला देने पर फैसले का खैर मकदम किया है और समझाया कि सच को एक दिन सच होना ही था और अनकरीब बाबरी मस्जिद का सच भी खुलकर सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। वैसे इस केस की अगली सुनवाई अगस्त 26 को रखी गई है। जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेवालिकर के बेंच ने अपने 58 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वाज़े किया है कि भारत का मीडिया बिकाऊ साबित हुआ है और तबलीगी जमातियों के खिलाफ में गलत प्रोपेगेंडा फैलाकर मुल्क के सारे मुसलमानों के खिलाफ में हिंदुओं को मुश्तइल किया और फसादात करवाए। इस केस का फैसला आईपीसी के तहत द एपिडेमिक डिजीजेस, महाराष्ट्र पुलिस एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और फॉरेनर एक्ट को बरोएकार लाकर दिया गया है। तेलंगाना के वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट KTR की हिदायत पर आज शहर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने रामपल्ली का दौरा करते हुए हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के तहत बनाए जाने वाले करीब 6240 मकानात का जायजा लिया और बतलाया कि सीएम KCR ने गरीबों की मदद के लिए करीब 1 लाख डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर का मंसूबा तैयार कर रखा है, जिनमें सभी सहूलतें बहम पहुंचाई जाएंगी जो बड़े घरानों में रहती हैं, जैसे गेटेड कम्युनिटी, बरखी, पार्क्स, आबरसानी वगैरह के माकूल इंतजाम रखे जाएंगे और रामपल्ली के इन तामीरात की तकमील इस माह के अख्तिताम तक हो जाने की बात इन्होंने इस मौके पर बतलाई है।
शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में वाक़े नेहरू मेमोरियल स्कूल की एक मशहूर टीचर पद्मा प्रिया को आज गरीब तुलबा को बेहतर तालीम देने पर जातिया उत्तमा टीचर अवार्ड से नवाजा गया। इस गरीब परवर टीचर ने साबिका में अमेरिका का दौरा करते हुए वहां के टीचर्स को भी पढ़ाने का एजाज हासिल किया हुआ है। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने इस हरदिल अजीज टीचर को एक गणेश आइडल का तोहफा पेश किया। बाद में पद्मा प्रिया ने अपनी आप बीती सभी के सामने पेश की। उस तकरीब में पुलिस के कई आला ओहदेदारों ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना में हालिया मोहलिक कोरोना वायरस की वबा की वजह से होने वाले लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से ट्रांसपोर्ट का गैर मुनज़्ज़म शोबा बेहद मुतासिर रहा है। रियासती हुकूमत के मुस्तहसिन इक़दाम का मुंतज़िर सीसी बस टेम्पो ट्रांसपोर्ट सर्विस से वाबस्ता कारोबारियों ने रियासती हुकूमत से टैक्स व इंश्योरेंस से इस्तिस्ना देने का मुतालबा पेश किया था। इस ज़िमन में सैयद निज़ामुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए आज बतलाया कि माह मार्च से लॉकडाउन और कर्फ्यू जारी था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट शोबा बेइंतहा मुतासिर हो गया। रियासती हुकूमत की जानिब से माह अगस्त में टैक्सेस वगैरह दाखिल करने की हिदायत दी गई थी, जिस पर अमलावरी से माशी तौर पर पसमानदा कारोबारी खासिर साबित हुए हैं। इस सिलसिले में वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की जाने की बात भी बतलाई गई। उन्होंने मजीद बतलाया कि इस गैर मुनज़्ज़म शोबे से 6 लाख से ज़ायद ख़ानदान रास्त या बिलरास्त मरबूत हैं। इन्होंने आगे बतलाया कि मज़कूरा इंडस्ट्री तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज़ायद पर मुश्तमिल है, जिससे रियासती हुकूमत को सालाना 2,500 करोड़ रुपए आमदनी होती है। इन दुशारकुन हालात में रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इस शोबे को तबाही से महफूज रखने के लिए टैक्स और दीगर मामलात माफ़ कर दे, ताकि इनकी बका बआसानी मुमकिन हो सके। इन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ भी करवाया। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल जब्बार, शेख रहीम, मोहम्मद अयूब के अलावा बहुत सारे दीगर समाजी खिदमतगार भी वहाँ पर मौजूद थे। दुनिया में बड़े ही मशकूक अंदाज में फैला दिए जाने वाले कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद अभी 23 मिलियन तक जा पहुंचने की बात सामने आई है और ताहाल इससे मुतासरा होकर मरने वाले 8,03,000 तक पहुंच गए हैं। ये इत्तला जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की जानिब से दी गई है। वैसे आज की तारीख में मुतासरा मरीजों की तादाद 2,31,30,345 बतलाई गई है और ये CSSE की ताज़ा रिपोर्ट है। जबकि सबसे ज़्यादा मुतासरा यूनाइटेड स्टेट्स उभर कर सामने आया है, जहां पर अभी तक 56,66,121 केसेस दर्ज किए गए हैं और मरने वालों की तादाद 1,76,345 बतलाई गई है। इसके बाद का नंबर ब्राज़ील का रहा है और अब तीसरे नंबर पर हमारा मुल्क भारत आ गया है, जहां पर ताज़ा केसेस की तादाद 29,75,701 तक जा पहुंची है और आज की तारीख में ये तादाद 69,239 के तहत आगे बढ़कर 30 लाख से भी मुतजावज कर गई है। मुल्क की खानदानी फलाह बहबूद की वजारत ने वाज़े किया है कि अभी सारे मुल्क में 30,44,941 मुतासरा केसेस रवा हैं, जिनमें मरने वालों की तादाद 56,704 तक पहुँच गई है। इस दौरान यह भी खबर गर्म है कि कोरोना पॉजिटिव के सिलसिले में रियासत महाराष्ट्र ज़्यादा मुतासिर सामने रहा है, जहां 1,69,883 एक्टिव केसेस चल रहे हैं और कल की तारीख तक रियासत तेलंगाना में भी कोरोना के 2,384 केसेस रिकॉर्ड में आए और सिर्फ एक दिन में 11 अमवात भी वाक़ हुई हैं और इस तरह से अभी चलने वाले यहाँ पर पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,04,249 साबित हुई है। इसी दौरान रियासती इंतजामिया ने यह खबर भी पहुंचाई है कि सिर्फ पिछले 24 घंटों के दौरान 40,666 कोविड टेस्ट किए गए हैं और कोरोना की धिचक के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है। वैसे भी ये अच्छी तरह सभी को याद होगा कि रियासत में कोरोना वायरस की इब्तदाई दौर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बेड्स के नाम पर इंसानियत को कैसे नोचा खसोटा था। हालांकि तारीख गवाह है कि कभी भी गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा इंसानियत का साथ नहीं दिया है, फिर भी इंसानियत पैसे के पीछे पड़कर इंसानियत का ही सर शर्मसार करती रही है। लेकिन अभी हुकूमत के एक बुलेटिन ने वाजे किया है कि रियासत के तकरीबन सरकारी व गैर सरकारी दवाखानों में करीब 17,986 बेड्स खाली पड़े हुए हैं और सरकारी और प्राइवेट टीचिंग हॉस्पिटल्स में अब ये बेड्स मुफ्त में दस्तयाब रहेंगे। लेकिन ये और बात है कि
लुटी हुई आवाम को अब ज़बरदस्त अकल आ गई है और वो दवाखानों में शरीक होने से बेहतर दीगर सिस्टम ऑफ मेडिसिन के इलाज को तरजीह दे रही है। चलिए अब ज़रा कोविड-19 की मैथमेटिक्स पर भी एक नज़र डाल लें जो अभी हमारे मुल्क में वाक़ हुई है। दिल्ली की एक लड़की कोविड-19 पॉजिटिव साबित हुई, लिहाजा लड़की के सारे ख़ानदान वालों के साथ साथ उसके एक बॉयफ्रेंड को भी क्वारंटाइन होना पड़ा, क्योंकि पता नहीं उसने लड़की के साथ कैसे वक्त बिताया था। बाद में पता ये चला कि लड़की के एक नहीं बल्कि 3 और बॉयफ्रेंड्स थे, लिहाजा इस तरह से उन लड़कों के साथ साथ उनके ख़ानदान के भी 37 अफराद को क्वारंटाइन होना पड़ा। ऐसे ही बात आगे बढ़ी, बाद में ये राज खुला कि इन बॉयफ्रेंड्स के भी कुछ दीगर लड़कियों के साथ मुआशक़ा चल रहे थे और उन लड़कियों के भी कुछ और बॉयफ्रेंड्स थे, लिहाजा ये सिलसिला चल पड़ा और इस तरह से मौजूदा हमारे मुल्क की आबादी ऐसे बढ़ रही है बिना शादियां किए हुए। समझ गए ना? टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।